Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today again we will solve exercise 3b, and we will start from question number 5, 6 and 7. Right? Question number 5 is your homework. It is similar to the previous question number 1, 2, 3 and 4. I will solve question number 6 and 7. इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा. ये आपका होमवर्क हो गया. और इसमें जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, फ़िलहाल आप उसको सॉल्व ना करें, उसको छोड़ दें. ठीक है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा सीख लें. नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. लेट अस सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड. फर्स्ट पार्ट इज द length of the square, meaning the length of one side. We will find the length of the one side, and second part is we will find the perimeter of the square. So this is the solution of the question number 6. The total area, given that the area of the area of the square is equal to 264 centimeter square, right? And this is the rectangle. Suppose this is the length. Let us suppose the length of one side is equal to s. So this the side s, and side s. So we know that area is equal to length multiplied by width. But here length and width both are equal. So s multiplied by s is equal to s square. Area is equal to s square. Also given that area is equal to 264. So is equal to s square. Putting the value of area, right? Now 264 is the square of 16. Is the square of 16 multiplied by 16 is equal to 264. So 264 is the square of 16. So in 16 square is equal to s square. Now 16 square is equal to s square. S taking square root on both sides. इसका भी आप square root ले लें और इसका भी आप square root ले लें. ठीक है. This square and square root will be cancelled. Square and square root will be cancelled. So s, the length of one side is equal to 16.2 centimeter. 16.2 centimeter, right? इसका तकरीबन 16.4 तक ये इसका स्क्वायर बनता है 264 का. ठीक है. इसको आप कैलकुलेटर से कर लो, ये हो जाएगा यार. s is equal to 16.2 centimeter. Now we will find the perimeter. Perimeter क्या होता है? Perimeter is the boundary of the square. The boundary of the square mean the sum of all sides. यानी कितने sides है? 1, 2, 3, 4. 4 sides हैं. 4 को हमने क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है. So according to the definition, perimeter is equal to sum of all sides. The length of one side is equal to 16.2. The length of one side is equal to 16.2. So there are total 4 sides. So we will add 4 times or multiplying 4 by 16.2. यस, इसको 16.2 को 4 टाइम ऐड कर ले या 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा. ठीक है. तो 16.2 प्लस 16.2 प्लस 16.2 प्लस 16.2 इज इक्वल टू 65. आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. यानी 4 साइड हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16.2 की 16.2. सो इट बिकम 65, approximately 65 सेंटीमीटर. approximately 65 सेंटीमीटर के ही क्या आ जाएगा? approximately आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 से द circumference of the circle is 136 सेंटीमीटर. This is the circumference. The circumference of the circle is given, which is equal to 136 centimeter. The first part of the question number 7 is find the radius. इसका हमने radius find out करना है. So we know that circumference is equal to 136 meter. So according to the formula, circumference is equal to 2 pi r. Circumference is equal to 2 pi r is equal to 136. So dividing both sides by 2 pi. इस साइड को भी 2 pi भी डिवाइड कर लें, इसको भी 2 pi भी डिवाइड कर लें. तो 2 pi और इधर लेफ्ट हैंड साइड से यानी इसको भी 2 pi भी डिवाइड कर लें, इसको भी 2 pi भी डिवाइड कर लें और इसको भी 2 pi भी क्या कर लें? डिवाइड कर लें. तो ये 2 pi और ये 2 pi क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. r इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 2 pi. द वैल्यू ऑफ द पाई इज 3.14. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द पाई विच इज इक्वल टू 3.14. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 136 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.15. इसको आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से. वी विल गेट r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 21.6 मीटर. 21.6 meter, right? Now we will find the area of the
circle. Area of the circle, we know that the area of the circle is equal to pi r square, where pi is equal to 3.14, the value of the pi is equal to 3.14, and radius, this is the radius, r is equal to 21.6, so 21.6 whole square. So taking that 21 by using calculator, solve 21.6 whole square multiplied by 3.14, we will get 1464.9 मीटर स्क्वायर. इसको हम अब राउंड ऑफ करेंगे. क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे. तो ये 9 है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 टू द 4. इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1465, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा 0.6. ये डेसिमल के बाद जो नंबर क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे पास ये राउंड ऑफ हो जाएगी. यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमने सॉल्व करना है. ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3B था, ये फिनिश हो गया. अब हम ये एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट 3.4 टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन. ठीक है, एस्टिमेशन क्या है? इसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं. इट इज़ द टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन. यानी अगर एक वैल्यू है उसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं. एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है? उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं. तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको क्लियर करने के लिए. शिरली एवेल्यूट 31.5 प्लस 9.87 माइनस 2.1 यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड शी सेज दैट द आंसर इज़ 392.7. ये जो 392 नहीं है, या ये डिसिमल जो है इधर नहीं है, डिसिमल इधर है, ये 39 के बाद है, 39.27 है. ठीक है, without doing the actual calculation, use estimation to determine whether Shirley's answer is reasonable. Then use a calculator to evaluate this. Is your estimated value close to the actual value or not? इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है, एक तो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, और एक इसकी हमने एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, फिर दोनों आंसर को हमने कंपेयर करना है कि हमारे पास जो दोनों आंसर आता है, जो आंसर आ रहे हैं वो रीजनेबल है यानी रीजनेबल नहीं है. मीन दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज्ड हैं या ज़्यादा क्लोज्ड नहीं है. तो सोल्यूशन हमारे पास ये है 31.5 प्लस 9.87 माइनस 2.7 अप्रोक्सीमेटली. ये सिंबल, दिस सिंबल इज़ यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन, राइट. इसको हम राउंड ऑफ करते हैं. ये 5 है, तो ये डिसिमल के बाद 5 है, इसको 5 को हमने ख़त्म करना है, तो ये 5 ख़त्म करेंगे. ये चूँकि 5 है, इन्हें 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो इसमें 1 में 1 ऐड कर लो, हमारे पास ये 32 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये 32 हो गया. ये पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, हमारा 8 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो लिहाजा ये इस एलिमेंट को हम ख़त्म, इस नंबर्स को हम ख़त्म करेंगे, और ये जो 8 है इससे हम 1 इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, और इस 9 में ऐड 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10. और ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है 1, ये डिसिमल के बाद जो नंबर है 1, इसको हमने ख़त्म करना है. ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 5 से लेस है, तो लिहाजा इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये बल्कि ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों 32 प्लस 10 से 42 माइनस 2 हमारे पास क्या था? 40 के, राइट. तो ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर इसका आ गया 40, राइट. अब ना भाई शिरली आंसर इज़ रॉन्ग बिकॉज वाई? अगर हम इसको कैलकुलेटर से यूज़ कर लें, द एक्चुअल आंसर हमारे पास आता है 39.27. इनको कैलकुलेटर से ऐड कर लो. इसको कैलकुलेटर से ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर है 39.27. ये एक्चुअल आंसर एग्जैक्ट आंसर है, ओरिजिनल आंसर यही है उसका, एग्जैक्टली एक्चुअल आंसर. और हमारे पास ये जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर है. ठीक है, अब देखें इन दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है 39.27 और 40 में. तो ये एक दूसरे की 40 और ये जो हमारे पास एक्चुअल आंसर, एस्टिमेटेड आंसर और एक्चुअल आंसर, दीज आर क्लोज टू ईच अदर के. तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन. इन्हें इसके बजाय हम 40 यूज़ करते हैं, इन्हें राउंड ऑफ करते हैं, एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ का हम सेलेक्ट कर लेते हैं. अब ये एग्जांपल नंबर 7 है. A wallet cost 225 Thai baht, right? The conversion rate is 1 baht is equal to $0.041212. यानी 1 बात इसके बराबर है. विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द वॉलेट. इसका हमने एस्टिमेशन करना है. क्या एस्टिमेशन करनी है? ये जो ना हमारे पास नंबर है 2 to 5, इसकी हमने एक वैल्यू फाइंड आउट, इसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करनी है. ये जो नंबर है ताई बात, इसको हमने क्या करना है? डॉलर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 बात इसके बराबर है. अगर दोनों साइड का इधर भी 100 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 100 मल्टीप्लाई करें, तो 100 बात इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास आते हैं 100 बात
ये हमारे पास आता है $4 के, किसके बराबर आता है $4 के। इसको आप ये जो नंबर है इसके साथ आप 100 मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो डिसिमल जो 4 डिसिमल आता है वो नंबर हमने इसमें इग्नोर किया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट होल नंबर जो होल नंबर है 4 वो डायरेक्ट लिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई है, ठीक है। डिसिमल के बाद जो नंबर आता है वो हमने इग्नोर किया हुआ है। 200 मल्टीप्लाई टू इसके साथ 2 मल्टीप्लाई इसके साथ 2, ये हो जाएगा 200 और यहाँ पर आ जाएगा $8, ठीक है। सिमिलरली इसको 2 पे डिवाइड कर लो, जब इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे 100/2 इज इक्वल टू $50 ना 50 बात, और 4/2 इज इक्वल टू $2 के, राइट। यहाँ पर अब इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे और इसको भी 2 पे। 50/2 हो जाएगा 25 बात इज इक्वल टू $1 के, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है $1 किसके बराबर आता है 25 बात के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 1 बात इसके बराबर है अप्रॉक्सीमेटेड, तो हमारे पास 225 बात है, तो वो किसके बराबर होंगे इन इसके साथ। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, तो इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 25 यानी ये जो है 225 होता है बात, राइट। इसको हमने यहाँ पर इसको इक्वल करना है, तो इसके साथ भी 25 ये 9, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी 9 मल्टीप्लाई, दोनों के साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 225 बात, और ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा $9, ठीक है। तो 225 बात हमारे पास बराबर आ रहे हैं $9 के। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए करते हैं कि हम एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में फ़र्क क्या होता है उसको हम किस तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसमें इतना फ़र्क नहीं होता, बस हम अपने लिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 9 है नेक्स्ट हमारे पास। इसमें भी ये सेम टू सेम इस तरह है, आपको शेडेड रीजन गिवन है। वो कहते हैं ये जो शेडेड रीजन है और ये अनशेडेड रीजन है, ये आप एस्टिमेट कर ले कि ये नॉन शेडेड रीजन कितना है और शेडेड रीजन कितना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हाफ डिवाइड यानी 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। यहाँ से ये देखिए ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये डॉटेड लाइन लगाएं। अब अगर हम देखें तो ये देखें ये जो हाफ इधर हो गया और हाफ हमारे पास इधर हो गया, ठीक है। ये जो हाफ है, अब ये जो अनशेडेड रीजन है अनशेडेड और ये यहाँ ये लाइन्स यहाँ तक जो शेड रीजन है इसका तकरीबन हाफ बनता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो रीजन है हमारे पास इसको फिर हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका इधर भी एक लाइन लगाएंगे, इधर भी एक लाइन लगा लेंगे और इधर भी हम क्या करें एक लाइन लगाएंगे। ये जिस तरह ये इसमें देखें ये लाइन लगाई हुई है, इसमें ये एक लाइन इधर लगी हुई है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब देखें ये टोटल रीजन हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 4 पार्ट में। तो 3 पार्ट जो है ये शेडेड रीजन के, ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये जो 3 पार्ट हैं 1 2 3 ये शेडेड रीजन के, और ये 1 पार्ट किसका है अनशेडेड रीजन के, ठीक है। ये नॉन शेडेड या अनशेडेड रीजन के, तो लिहाजा हमारे पास जो रेशो बन गया ये बन गया 3:1 3:1, यानी 3 पार्ट जो है 3 पार्ट्स शेडेड रीजन के और 1 पार्ट अनशेडेड रीजन के, ठीक है। इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज भी सेम टू सेम इसका एस्टिमेशन और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। ये पूरा एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3 सी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको खुद सॉल्व कर लो। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह कोई मसला उसमें नहीं होगा। थैंक्स।